So analysis of frame with sway. Yesterday we did a question, and question was this one. It carries UDL of 6 kilonewton per meter. It was 2 meter, 3 meter, and that one was also 2 meter. 2I, I think. I. It was a problem. And kinematic indeterminacy. Kinematic indeterminacy. It is 3 plus 3, 3 plus 3 minus 3. It is 3. And what are those? If this point is A, this B, C, D, then it is theta B, theta C, and delta. These are the kinematic indeterminacy because it has rotational as well as translational. Therefore, it will have sway. Therefore, it will have sway. I am not going in detail how we can identify the sway, but this is a procedure with the help of kinematic indeterminacy. We can guess whether the frame will have the sway or not. However, is not the full information to find whether the frame will have the sway or not. Now, analysis part. This frame can be analyzed with the help of superposition of two structures. Degree of freedom, we have this theta B, degree of freedom theta C, and C dash. Let this point is C dash with delta translation C, and similarly this point, let it is delta, this one value delta. So the deflected shape will have in this form, and similarly it can go in this form. Okay, yes. That frame can be considered in two ways. What are those ways? This one with UDL, this plus value delta, and this value delta. This point A, B is now at B dash, and C point is now at C dash, and its deflected shape can be can have of this shape. It will depend upon the magnitude of the translation. In this case, restraint at point this one C has been applied. Why restraint has been applied? To stop the sway. Therefore, there must be a reaction. Say it is R. Okay. At this point, and इसकी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं. इस वाले केस में इसमें क्या है कि since B and C are also free to move in this direction, so that
contribution for contribution of moment from B to B dash and C to C dash, it will have some moment होगा नहीं होगा, कल बताया था मैंने, it will also have some moment, डेल्टा कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितना वैल्यू डेल्टा होगा, जितनी R रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या आपका जवाब होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, उतनी होनी चाहिए जिससे कि ये डेल्टा दोनों कंपनसेट हो जाए, यही तो होगा ना, डेल्टा प्लस आर नहीं, एक तो फोर्स है, एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर एट पॉइंट सी इफ डायरेक्शन ऑफ आर इज इन दिस डायरेक्शन, देन देयर मस्ट बी ए फोर्स एस, देयर मस्ट बी ए फोर्स एस टू compensate that value of delta, so that we can have this figure. So with the superposition of these two diagrams, we can have that, and for that value of R should equal to be S. If we do not want to move our joint B to B dash and C to C dash, then we must have to apply equal and opposite direction of force at this point F. It is written in form of F, and that force is what? This is the, कल बताया था, it is sway force. It is the sway force. अब sway force में भी दिक्कत है, it is not this one, R is sway, नहीं, actually इसको restraining, R is a here restraining force against sway. Okay, is the restraining force against sway, and that is S is sway force. S is the sway force. And this problem, it is called as analysis without sway. That is analysis without sway, and this one is analysis with sway. And if you want to know the value of n moment for this given structure, therefore our result must be, क्या करना पड़ेगा, superposed. Our result must be superposed for this one and for this one, for this one and this one. Is the combination of these two, इन दोनों को combine करेंगे, then we will get this type of thing. We do not want to value of delta. Dotted shape, ये जो बनाया हुआ है, what is this? What is that? ये जो है ना deflected shape, इसमें जो करेंगे, it is also in that form. इसमें ये दोनों को combine. Okay? So to know the value of, इसमें analysis of sway में क्या करेंगे? First of all, we steps क्या होंगे इसमें? What will be our steps? First, distribution factor. After knowing the value of distribution factor, we will calculate end moment, and then we will calculate R. What will be steps for this? Number one step क्या होगा? Find fixed end moment for delta. Find fixed end moment for delta, पहला step. Then distribute moments as per distribution factor and calculate end moment, and calculate final end moment, and calculate final
एंड मोमेंट. कैलकुलेट यहां पर भी फाइनल एंड मोमेंट. Calculate final end moment. Of course, to calculate the final end moment, definitely we must have distribution factor, fixed end moment. For that case, we must have. ठीक, yes. After that, step number third, that must be very much clear to all of you. After that, we will calculate the value of स्मॉल एस. वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एस. अच्छा, इससे पहले भी क्या करना पड़ेगा? फाइंड FEM फॉर डेल्टा इज इक्वल टू सम एज्यूम्ड वैल्यू. फाइंड फिक्स्ड इन मोमेंट फॉर, ऐसे करें, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ EI डेल्टा. फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ EI डेल्टा. For certain value of EI data, find out the fixed end moment. कल किया था ना? Find out the value of EI delta for certain value. I think EI delta was 30. I think. Okay. Assumed value. So we know the final fixed end. We know the fixed end moment. After knowing the value of fixed end moment, we can distribute. We can. कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कैलकुलेट. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट स्मॉल एस. किसके लिए? फॉर एज्यूम्ड EI डेल्टा. स्मॉल एस. यस, स्मॉल एस. वैल्यू ऑफ स्मॉल एस इज रिएक्शन at it is the sway force at C. It is the sway force at C. यहां पे देखें, ये क्या है? It is the sway force at C here, but this is small s, है ना? Small s, it is for assumed value EI theta. यहां पे मैं लिख देता हूं कैपिटल S and small s. It is both are the sway force. Both are the ये यहाँ पे sway force. We have two sway force, S and second one is small s. It is for assumed EI delta. For any assumed value, and capital S is for required. ये it is required. And कितनी वैल्यू? कैपिटल R. It is required, and that value will be what? कैपिटल R. ओके, यही तो होगा ना? नाउ हम यहां से क्या करें? स्मॉल एस से तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ. नेक्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेट कैपिटल S. कैलकुलेट कैपिटल S. कैसे कैलकुलेट होगा? कल शायद आपको मैंने बताया था. इट विल बी स्मॉल s इनटू, इसकी रिएक्शन कितनी आएगी यहां पे? रिएक्शन एट C मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल. दैट इज द, यही होगा ना? वैल्यू ऑफ कैपिटल S विल बी कैपिटल R डिवाइडेड बाय रिएक्शन एट C. Linear interpolation. With the help of linear interpolation. And listen, direction of capital R and capital S must be in opposite direction. To get the final values of the end moment. We must be cared that value. Okay? Calculate capital S. Then next step. Find end moment. किसके लिए? फॉर कैपिटल S. अभी ये एंड मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट फाइनल एंड मोमेंट. दीज मोमेंट्स विल बी फॉर व्हाट? इट विल बी फॉर स्मॉल s ओनली.
एस ओनली, हमें स्मॉल एस के लिए जरूरत नहीं है, किसके लिए जरूरत है, कैपिटल एस के लिए। हमें जरूरत है वैल्यू किसके लिए, कैपिटल एस के लिए। तो कैपिटल एस के लिए वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हर एक एन मोमेंट में वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, ऑल एन मोमेंट will be multiplied by that factor. Okay, and after knowing that value we will add these two to get the final value. So this is the basic, that is the basic. It was also discussed in last, but it was not so systematic. It was not so systematic, so please write down all the things whatever is written here, and you should be that should be kept in your mind. Without having such type of systematic thing, you will feel very much difficulty while attempting the questions of sway, total frame with sway using moment distribution method. That must be very much clear. These are the basic steps. Analysis sway, without sway, with sway. या इसी को sway analysis बोलते हैं, but it can be also called as sway analysis. और ये है कौन सी एनालिसिस, ये this one is sway analysis and this one is analysis without sway. Okay. Analysis, yes, without, analysis without sway, without sway. इसमें है क्या sway, रेस्टेंट कर दिया गया ना, विद वाला तो ये, दिस वन इज विद. इसको सभी लोग प्रॉपरली साफ सुथरा लिख लो, बहुत जरूरी था, जो आपको कल मैंने नोट नहीं करा पाया था. इसके बाद सारा बहुत कुछ सिंपल हो जाएगा, इसके बाद दनादन आप करोगे. After writing that, you must write note. What will be the value of R? What will be the value of R? What will be the value of R? If this point is A, this is B, this is C, this is D. सभी ध्यान से देखें, लिखना बाद में, समझो थोड़ा. यहीं पे थोड़ा हमने मिस्टेक किया था कल. To calculate calculation for value of R, it was wrong. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा हमें. Due to this load, due to this UDL on part BC, we must have क्या end moment? End moment होगा नहीं होगा? Okay. So if I am making free body diagram for CD, if I am making the free body diagram for CD part, नहीं उससे भी पहले, it must be it will have HA and it can have value of HD, horizontal reaction. Due to that load, due to that UDL, horizontal reaction H small HA, मैं word use करूँ small HA and small HD can be there, and if these are the values at the support reaction, given support reaction, then the value of R can be calculated using this by applying sigma fx equals to 0. Can we have the value of capital R? है ना? That will of course it will be yes, SD minus S. By applying sigma fx equal to 0. By applying sigma fx equal to 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. By applying in this figure sigma fx equals to 0, we will have minus r plus HA and minus HD equals to 0. So the value of capital R is small HA minus HD. Okay. Similarly, here what will be the value of capital S? What will be the value of capital S? Suppose reaction at this point, it is suppose S dash A and suppose it is S dash D.
suppose these are the values of the reactions. So the value of capital S क्या होगा? Apply sigma fx equals to 0. Apply sigma fx equals to 0. Then you will get in same direction capital S. This is plus HA dash and this is minus HD dash equals to 0. What is the value of capital S? HD dash minus this is the value. This is the value. Clear? That type of thing कल हम लोगों से क्या हो रहा था? गलत. बाकी सारा every step was correct, but that calculation it was not proper. That calculation of reaction was not proper. Remaining thing was according to that concept. And today I am delivering in a very systematic manner. In a very systematic manner. Now, how to calculate the value of HASD? We know very well. अभी मैं उसको भी लिखा देता हूँ. How to calculate the value of HASD or HA dash or SD dash? वो भी मैं अभी बता देता हूँ. Finally, उससे पहले आप यहाँ पे देखो. If that यहाँ पे if in given structure, if that value is capital HA and that value is capital HD, if in given structure it is the value of capital HA and capital HD, then what will be the value of capital HA and capital SD? It will be the summation of this. It will be the summation of क्या होगा? Value of HA will be small HA plus HA dash. Plus minus जो भी आएगा that will take care. Plus minus of course आएगा उसमें, जो भी आएगा वो हम देखेंगे. And what will be the value of capital HD? Capital D will be इसी same direction में. It will be small hd plus एक सेम डायरेक्शन है तो माइनस वाला इसका प्लस h dash small h dash d. These will be the values. These will be the values. So the values of capital HA and capital HD. These are the horizontal reaction in क्या है ये? These are the horizontal reactions in given frame. These are HA and HD and that value is small HA plus HA dash and HD plus H dash D. These are the values. Okay? And what will be the final end moment? Final in the same way. जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज होंगी. क्लॉक ना क्लॉक इज दिस क्लॉक वन इज नीचे को दिस वन एंड दिस वन. ओके. वैल्यू ऑफ इसके लिए क्या होगा? एम ए बी एम बी ए दिस वन एम बी सी एम सी बी एम बी सी. सिमिलरली इसके लिए भी कैलकुलेट करो. इसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे. दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन. सो व्हाट विल बी द फाइनल एंड मोमेंट? यहाँ पे क्या होगा? इफ दिस इज यहाँ पे फाइनल एंड मोमेंट विल बी, अगर इसको मैं इसको x लिखूं, इफ इट इज y देन इट विल बी x प्लस y. क्लियर? एंड रिमेनिंग के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं. सारी चीज क्या हो जाएंगी? इसका एंड दिस वन बोथ, इन दोनों का क्या होगा? इट विल बी द समेशन ऑफ. क्लियर? सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंड मोमेंट इन गिवन रे. सिंपली इट विल बी दैट वन पार्ट एंड दैट वन पार्ट. समेशन ऑफ दिस. यहाँ पे कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल एंड मोमेंट एट पॉइंट बी? डेफिनेटली इट विल बी द समेशन ऑफ दिस वन प्लस समेशन ऑफ this one. With the help of table we will add on. Okay? And for that case value of capital H and small s must be kept in our mind.
We should not forget that value of small s is for assumed value of EI delta only. We have to convert it to find the value of capital S. Okay? So the remaining thing which I want to tell you, how to calculate the value of HA and HD. The next thing is to tell the value how to calculate the value of so how to calculate small HA and HD या HA dash या HD dash, both are the same thing. कैसे कैलकुलेट होगा वो आप देखें. We must have free body diagram for this. किसी का इसको ले लो या इसको लो, is the same thing. So if I am considering this one, this part is B, A, this is C, and this is, suppose this is D. Okay, so that part इधर मूव करेगा. Okay, so this will be A part, B, इसी तरीके से ये C and D. देखें बिल्कुल शाम बिल्कुल. थोड़ा सा बेटा आगे इधर आ जा, नहीं बैठ पा रहा है ढंग से उधर. हाँ बीच वाली इधर आ जा. उधर आना है, इस जगह पड़ी है, हिलने ना पाइए. सो यहां पे देखें सभी लोग ध्यान दें. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA एंड HD, और आगे मैं बता चुका हूं फिर भी, लेकिन आप फिर भी देखिए. यहां पे क्या है, यहीं पे तो फोर्स लग रहा है. दिस वैल्यू इज स्मॉल HA और यहां पे क्या है स्मॉल HD. यही तो है ना, ऐसा ही तो है. इफ यू विल रोटेट इन दिस मैनर, सो रिएक्शन कहां से लगेगी, ऊपर से. यही क्या HA और इस वाले में HD. क्लियर, यही तो होगा. और इसके अलावा क्या होगा इसमें, मोमेंट एंड मोमेंट क्या होगा, जो भी वैल्यूज आए. सपोज मैं इसको मान लेता हूं ये क्लॉकवाइज है ना, दिस वन क्लॉकवाइज, दिस वन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. किस बात पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन इट्स साइन, वेदर इट इज प्लस और माइनस. तो मैं यहां पे वैल्यूज लिख देता हूं. इट इज MAB एंड इट इज MBA, दिस इज MCD, दिस इज MDC. अब देखो जो मैं बताना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ HA. What will be the value of HA? It will be minus HA. Okay, because it is downward. You know this expression. If this value is M1, this value is M2, and if the reaction is R1 and R2, I have told you in my last class, value of R1 क्या होगी, value of R1 M1 minus M2 divided by L, if this is L. And if we want to calculate the value of R2 this one, M2 minus M1 divided by L. तो जहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो वाली वैल्यू से फार वाली वैल्यू घटेगी. बता चुका हूं ना मैं. तो वी विल अप्लाई सेम थिंग ओवर हियर. माइनस HA, तो माइनस HA विल बी व्हाट, डिवाइडेड बाई जितना भी L है वो तो होगा ही होगा. डिफरेंस किसका किया जाए, MAB माइनस MBA का क्या. और अभी भी यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, माइनस MAB माइनस MBA. ओके, दिस माइनस साइन दैट माइनस साइन कैन बी कैंसल्ड आउट, सो प्लस हो जाएगा. वो मैं हाँ वो बात की बात है, वो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था. दिस इज द वैल्यू ऑफ HA एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ HD निकाल सकते हो क्या, कहां से निकलेगा, इस फिगर से निकलेगा. इससे निकलेगा क्या, दैट वैल्यू विल बी हाउ मच, L. हाँ अब माइनस ये इस वाले से ना,
एम डी सी माइनस एम, ये देखो हाँ माइनस तो पहले से ही है, एंड माइनस एम, so these are the things which must be clear before going to solve that questions, such type of question. Clear everybody? कोई दिक्कत नहीं? कल का मिस्टेक क्या था सबको समझ में आ गया होगा। कल का मिस्टेक हमने ये वाला पार्ट जो है ना बहुत जल्दबाजी में, हाँ बहुत जल्दबाजी में कर दिया था। हाँ वो वहीं पे हमने डायरेक्ट क्या किया था, यहीं पे ले लिया था, सीडी पे ही लेके काम कर लिया था, बट इट विल नॉट बी दैट, ये होगी ये वाली वैल्यू होगी, वैल्यू विल बी दैट। सिमिलरली कैपिटल एस बी कहाँ लिखी है, दिस वन। ओके, तो अब हम लोग सेम क्वेश्चन को अगले पेज से बिल्कुल एज इट इज जो फ्रेश उसको तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे, उसमें करेक्शन नहीं करेंगे, क्या करेक्शन करना है आपको पता नहीं होगा। ओके, बिल्कुल फ्रेश तरीके से उसको सॉल्व करें। डेटा हमारे पास कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फास्ट हो जाए, स्पीड अप हो जाएगा काम हमारा, है ना। दो टेबल, वो तो सेम टेबल यूज होंगी, टेबल सेम यूज होंगी, बस केवल आर का वेरिएशन है, तो स्पीड अप हमारा विद इन 15 मिनट आई थिंक दैट क्वेश्चन कैन बी कंप्लीटेड। ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व। ओके, क्या मैं रेज करूं, पूरा ही करना पड़ेगा? नोट कर लिया आप लोगों ने? इधर का रेज करता हूं पहले। ओके, so we have this problem, this is A, this is B, this is C, this is D. Distribution factor, first of all we have distribution factor, then distribution factor we have the table number 1 joint, आप भी बिल्कुल बना बेटा, joint member, फिर then K, summation of K divided by summation of K, joint B, and joint B has 2 member BA and BC, again joint C has 2 members, so it will be CB and CD. So that value was ये कितना था, 2i ना, 2i, I and I, please do not talk, so it is 8i by 3 because it is 3 meter, it is 2 meter, and it is 4i by 2 because it is also 2 meter, so 2i, similarly that value कितना था ये 4.667, so that value was 0.571 and that is 0.4429. okay, similarly this value is 2i of course, and it is also 4i by 2, so 2i, so summation is 4i, so it is 0.5. That was done. Okay, but you have to write here all steps. Do not make the correction in last answer. Do not make correction. And after having that, we have to go for what? This one. We have to go for कौन सी analysis है? Without sway. ठीक है? So the next is analysis without sway.
So the next thing is analysis without sway. Analysis without sway. So for your understanding, make this small figure. For your understanding, make this small figure. बस इतना जरूर बनाए, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, स्मॉल, कि आप करने क्या जा रहे हो, आपको चीज पता हो. एंड लोड इज दिस, वैल्यू कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ABCD वो भी सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि व्हाट यू वांट टू, which type of structure you want to go, you want to analyze. Okay, now fixed in moment हमें मालूम ही है ना. This point is of course A, B, C, D. Fixed in moment we know very well. F हाँ, F नहीं MF ना, MF AB, MF BA, MF BC, MF CB, MF CD, and value of MF DC. We know that these values are 0, 0. This is minus WL square by 12, and it comes to be minus 2. Minus 2. That value is of course how much? Plus WL square by 12. So it will be 0 plus 2, and that value will be 0. That we have calculated. Now we have to make the table. So adjoint B, the members are BA and BC, and the distribution factor is 0.571, and for BC distribution factor is 0.429. It is adjoint B, and adjoint C we have CB and which one? CD. For CB it is 0.5, for CD it is also 0.5. So we have that type of table which we have to complete it. And here it will be AB, here it will be which one? DC. So the first step, fixed in moment. First fixed in moment. We have completed this table. So we will do in a very fast manner. Or I have told you in my last class that we do not need to write for that, and for that we do not need to complete. Okay, we do not need to complete, but we will write fixed in moment. It is 0, it is also 0, minus 2, plus 2, 0, 0. Okay, half होगा, कितना होगा वो हम बाद में अभी देखेंगे. If it will have no external loading, then it will be half, and if will have the fixed in moment, then we have another expression. Do not worry, we have both expression, without external loading and with the external loading. So, but we will skip out this to save our time. And what will be the next step? Of course, we know very well that we have to balance at B and C. So you tell me that value, because that values are written in your notebook. So how much the value should be written here? 1.14, and here 0.86, and here 0.5. So it is -1 and -1. Next step is carry over, and we have to do only these two only. Okay, so this value is -0.50, and that value is 0.43. कुछ value नहीं इधर. Okay, then again balance -0.5. How much the value should be written for part BA? प्लस में होगी, इतना तो मुझे मालूम है, that I know very well. But how much is that? 0.0 कितना? 29, and for this part plus 0.21. Similarly for here it will be of minus sign.
0.21 and this will be minus 0.22. Next is carry over. So carry over किसका? केवल इन्हीं दोनों का. बार बार एरो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बना भी सकते हैं. So that value is minus 0.11 ना, 11 और ए बी कितना? प्लस 0.11 हो गया. कैरी ओवर भी हो गया. नेक्स्ट इज बैलेंस. सो बैलेंस पॉइंट, ये प्लस वैल्यू होगी कितना? हाउ मच? 0.11 मल्टीप्लाई बाय दिस कितना आया? 0.06 and the remaining thing is 0.05 and here it will be 0.11 का by 2 means minus का 0.05 and 0.06 and carry over. So carry over is this one and this one, it is minus 0.03 and it is also it is plus 0.03. Okay, should we go for one more balance carry over? Yeah, we should stop? No, we should not stop because there will be the difference 0.3 में अभी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. वी हैव टू तब भी जो है ना 1 डेसिमल में तो आएगा ना. यू कैन स्टॉप बट योर आंसर विल नॉट बी सो एक्यूरेट. एक और कर लो, बैलेंस एंड कैरी ओवर, एक और कर लो बस. यहां पे फाइनल, याद रहने दो, जगह खत्म हो रही है. ठीक है, हटाओ. चीज आपको मालूम है ना? ओके, फाइनल. चलो ऐड ऑन करो. दिस इज 49. हाँ, उसमें 0.51 आ रहा था, है ना? एक अगर और करोगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1.51. आई थिंक सो यही वाली थी, 1.51 था ना. तो हाँ, इधर कितना आया? 1.29 8 है और ये माइनस 1.28. ओके, कितना डिफरेंस आया? कितना किया था कल भी? ये अगर करोगे ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बुक बीसी पुनमिया. तो इसमें एक स्टेप और करोगे तो ये 1.51 आ जाएगी, है ना? वही 0.02 का ही तो डिफरेंस हुआ, है ना? और यहाँ पे 0.3 में खत्म कर दिया. दैट्स वाई. नाउ द वैल्यू ऑफ MAB, वैल्यू ऑफ MAB एंड MDC. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MAB एंड MDC? देखें, लिखने से पहले दिस इज द स्मार्टनेस, बट before using that smartness you should be very much care whether this part has the loading or not. तो ये यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, then it will be simply half of BA. It will be half of MBA. So half of MBA मतलब कितना हो गया? 1.49 divided by 2 मतलब 0.745 है. तो 5 कर लो. एंड MDC इट इज, यहां पर भी देखो इट इज 0 0, नो लोडिंग. तो दैट वैल्यू विल बी MCD. सो ये इट इज माइनस 1.28 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स माइनस 0.64. सो दैट वैल्यू विल बी रिटन ओवर हियर एज 0.75 एंड माइनस 0.64. दैट वैल्यू हैज टू बी रिटन ओवर हियर इन दिस टेबल. Okay, we will not do that, we will write here. Okay, so after having that table, we will calculate the value of, yes, this one, HA, small HA and small HD. We will have to calculate the value of small HA and small HD to know that capital R. We know the value of capital R. R कितनी होगी?
apply sigma fx 0, then it will have capital R is equal to HD minus HA ना, HA minus सो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ए बी का, यही तो होगा, दिस पॉइंट इज बी, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, यही तो होगा आफ्टर रोटेशन। भाई आप तो डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बट डू नॉट यूज डायरेक्ट फार्मूला, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला कितने फार्मूले याद करोगे, ठीक है ना, गलत हो जाएगा वो। बुक्स वगैरह में डायरेक्ट फार्मूलेज लिखे हुए हैं, कितने याद करोगे, नो नीड टू मगअप ऑल दैट। आपको मैंने तरीका बता दे रखा हूं बीम की तरीके से, ओके। सो ये सही बनाया ना मैंने, ए बी उधर और ये सी डी उधर। अभी बस ये देखना है आपको क्या आएगा, ये एच ए आएगा एंड हियर इट विल बी एच डी। ये डायरेक्शन यहां से देख लेना, ये फिगर मैंने इसलिए बनवाई है, इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी हेल्पफुल टू एलिमिनेट द एरर्स, टू एलिमिनेट द एरर्स। सो एंड मोमेंट की वैल्यू जो यहां से आई है उसको लिखो, राइट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट फ्रॉम दैट टेबल। क्या लिखो यहां पे, एम ए बी, व्हाट इज द वैल्यू 0.75, सो व्हाट वुड बी माय साइन, दिस वन एंड दिस वन क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज वैल्यू इज downward, and I should write here as 0.75. Similarly for BA it is also plus, means clockwise, so I have to make in this direction, and that value is 1.49. okay. Similarly for this CD, similarly for this CD कहाँ है, this one, what is that value, minus, so what will be sign, and this one anti-clockwise with value 1.28, this is also minus sign, means anti-clockwise, so the direction will be this one, and that value is 0.64. After having that value we can calculate very easily, value of HA and HD can be calculated. So the value of HA minus HA, same way, minus HA divided by this length is AB is how much, 3 meter ना, it is 3 meter. अब देखिए which one moment has to be subtracted and with what magnitude, that you have to care here. क्या है ये मोमेंट, आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है। फिर मैं बना रहा हूं मैं, दिस वन वैल्यू m1 m2, दिस वन वैल्यू r1, दिस वन वैल्यू r2, वैल्यू ऑफ r1 बार बार मैं लिख रहा हूं इसको, सेम चीज को ही, क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन गलत हो जाता है बार बार। वैल्यू ऑफ r1 m1 माइनस m2, सिमिलरली r2 इज m2 माइनस m1। सो डायरेक्शन you have to care its direction also, so the value of HA क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे है तो क्या करूं, माइनस 0.75 क्या, ओके, ये तो सेम में है तो इट इज माइनस 1.49, ओके। सो माइनस माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, एड ऑन माइनस ईयर से, देन इट विल बी वैल्यू ऑफ HA कम्स टू बी हाउ मच इज दैट वैल्यू, 0.746 आ रहा है तो 75 कर लो। सिमिलरली वैल्यू ऑफ दिस वन माइनस HD डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज द लेंथ इज CD इज 2। अब देखें यहाँ पे दिस वन वैल्यू है ना, तो पहले आई हैव टू टेक इट एज माइनस 0.64 बिकॉज इट इज ऑफ माइनस साइन, देन माइनस it is correct, it is in correct sign, so it is 1.28. what is that value,
0.96, तो हाँ ये हो जाएगा एच डी वैल्यू इज 0.96. दैट वैल्यू हैज टू बी रिटन ओवर हियर. वैल्यू ऑफ एच ए हैज 0.75 and HD has 0.96. Therefore value of capital R. Therefore value of capital R कितना हो गया? HA 0.96 minus 0.75. It is 0.21. HA 0.75, right? 0.75 minus 0.96, so it is minus kilonewtons. माइनस साइन में आ रहा है. व्हाट इट्स मीन? इट इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स इट इज करेक्ट डायरेक्शन इज दिस. करेक्ट डायरेक्शन इज दिस. चेंज में मत करो वहां पे, बस यहां पे लिख लो. इट इज दैट, इट इज विद इन ब्रैकेट, यू राइट, यू मेक दैट. एंड व्हाट इज दैट? दिस इज द रेस्ट्रेनिंग फोर्स. दिस इज द रेस्ट्रेनिंग फोर्स, एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्स वैल्यू इज व्हाट? इट इज आल्सो स्वे फोर्स, है ना. इट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल एस. देयरफॉर नीचे क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर स्वे फोर्स इज हाउ मच? कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.21, है ना. नहीं, इसके बाद लिखना पड़ेगा देयरफॉर आफ्टर दिस यू हैव टू राइट हियर, आफ्टर दिस यू हैव टू राइट इट therefore sway force capital S will be R, and it is 0.21, but its sign will be this one, in that direction. Yes, क्या कुछ कह रहे हैं? आर फाइनल आर क्या है? ये तो है नहीं, लग तो ऐसे रहा है. तो रिजल्टेंट सी पॉइंट का जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा लगाना पड़ेगा क्या? तो एक्चुअल में ये होगी. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इज इट क्लियर? ये डायरेक्शन में अगर देना, नहीं तो जो प्लस होना चाहिए वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. इट मस्ट बी क्लियर. इट मस्ट बी क्लियर. जो अदरवाइज माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द कौन से एनालिसिस? विदाउट स्वे. द सेम वर्क वी विल डू फॉर स्वे. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एनालिसिस. ये नेक्स्ट थिंग इज distribution factor is written, तो मैं इसको I am going to erase now. Now next thing is analysis without sway analysis. Next thing is sway analysis. So table तो हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी सेम. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी सेम distribution table will be there, but before applying that we must know the value of fixed end moment. So for this consider this type of thing. This delta, this values of delta. Okay, कोई भी इधर आप चाहो, if you want to take translation in this direction then also no problem, you can take it. कल हमने ये वाला किया था ना, इसी डायरेक्शन में किया था ना, यही किया था सर. यस,
सो इसके लिए आपको बताया था मैंने, दिस इज ए बी सी डी. सो वैल्यू ऑफ after fixing all joints, we have this type of thing. ये after fixing and remove and rotating in that direction, we have this B joint. कहाँ पे आ जाएगा? नीचे B and B dash with the value of delta. This is B and B dash. This is A. Similarly, BC part, here delta BC is what? Delta BC is 0, है ना? Delta AB क्या है? Delta AB, delta and delta BC, it is also delta. So okay, and for part CD part, this one and this one D, and this point will move in that direction. This is delta, this is C dash. क्या बेटा? यस ओके, बता ही चुका हूं मैं. फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई दिस मोमेंट. For this we have to apply that magnitude of moment, and for that moment की वैल्यू क्या है? 6e 2i divided by L. L is a base 3, 9 square, नहीं 9, 3 square means 9 into delta, and that value is 4 by 3 ei delta. Clear? And this value 6e I delta by L square. L square means 2 square means 4, so it is 3 by 2 ei delta. That we did. Okay, and after that assume, okay, assume ये fixed end moment यहाँ पे assume ei delta as कितना लिया था? या अभी जूम बाद में लिखो, अभी आप ये लिखो फिक्स्ड एंड मोमेंट. देयरफॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट MFAB, MFBA, MFBC, MFCB, MFCD and MFDC. What will be that value? This one moment, this ये कौन सा है? क्लॉक anti-clockwise, so that same moment will be transferred over here. Okay, so this one value will also be 4 by 3 ei delta, और ये कैसा है? anti-clockwise, therefore it will be minus 4 by 3 ei delta, and this will also be 4 by 3 ei delta. Similarly here कैसा moment? ये कैसा अप्लाई मोमेंट है? क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस वैल्यू इज 3 by 2, so it will also be 3 by 2 ei delta. So it is 0. For BC it will not be 0, so minus 3 by 2 ei delta, and it is also 3 by 2 ei delta. कहाँ बेटा? हाँ, yes, you are right. Carry over, same carry over. You are right. Now, fixed end moment. If I am writing the value of fixed end moment in terms of ei delta, then we do not have the numeric value. Therefore, we must assume the value of certain value of ei delta. We must assume the certain value of ei delta. So let us take value of ei delta as 30 लिया था हमने. 30 लिया था, माइनस ले लें तो प्लस हो जाएगा. डेफिनेटली माइनस भी ले सकते हैं. वी कैन आल्सो टेक एट माइनस. कोई भी ले लो, एनी वैल्यू, यू कैन चूज एनी वैल्यू. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं ज्यादा.
कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्चुअली कल हम लोग कर चुके हैं ना -30 वाला, प्लस लिया था। आप -30 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऑल्सो टेक -30, ओके, यू कैन ऑल्सो टेक। चलो माइनस ही लेते हैं, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ओके। सो दैट वैल्यू विल बी माइनस, नहीं, हाउ मच, 40, दिस इज 40, 0 0 इट इज 45, ओके। नाउ कंप्लीट दैट टेबल। AB में AB इट 40, इट इज 0, नहीं 40 ना, 40 इट इज 0 0 45, okay, these are the fixed end moment. Now same चीज बैलेंस, बैलेंस करें क्या कर चुके हैं ना, बताओ मुझे वैल्यू। 22.84, 17.16, 22.5, -22.5. We do not need to write anything for that part, okay? अब फिक्स्ड इन मोमेंट है तो वो भी हमें मालूम है ना, लोडिंग है यहाँ पे, फिक्स्ड इन मोमेंट है, देन वी हैव द एक्सप्रेशन। नाउ कैरी ओवर दिस पार्ट ओनली, माइनस कितना, 11.3, -8.6, बैलेंस अगेन 6.45 प्लस का ना, 6.45 इधर 4.85, 4.3, it is also 4.3, then carry over 2. नहीं इधर का ऐसा ना, 2.15, 3.43, नेक्स्ट इज बैलेंस। एक मिनट, बैलेंस में -1.23, 0.93, -1.22, और इधर भी 1.21, ये तो था बैलेंस। देन कैरी ओवर दिस वन एंड दिस वन, ये हुआ -0.61, 0.47, बैलेंस पॉइंट दिस वन ना, प्लस ना, 0.35, 0.26, 0.24 एंड 0.24, क्यों 43 करो ना, ओके। फिर देन कैरी ओवर दिस वन 0.12, 0.13, अगेन बैलेंस 0.07, और इधर का -0.05, हियर 0.07, कैरी ओवर -0.03, ओ गलत हो गया, यस, दिस वन -0.03, आगे करें, बहुत है, काफी बंद करने को नहीं, आगे कैरी फॉरवर्ड वाला था। नाउ एड ऑन, सम करो, फाइनल इट इज 20.64 -22.64 -20.77, और ये हो जाए 25. And what will be that value? It will not be half. It will not be half. It will not be half. पूरा का पूरा भी नहीं होगा,
इट हैज द लोडिंग, फिक्स्ड इन मोमेंट तभी आएगा जब लोडिंग है। इट हैज द फिक्स्ड इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इन मोमेंट। यहां पर MFAB 40, MFBA also 40, here also it is MFCD 45, MFDC it is 45. So it is the case of loading. So do not worry, we have the expression also, do not worry. क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? जस्ट आंख बंद करके हाफ नहीं कर देना, तो ये स्मार्टनेस तो फिर नुकसान कर देगी। इससे अच्छा तो होता कि यहीं पे कैरी कर लेते। ओके, सो उसका एक्सप्रेशन आपको मालूम ही है। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? MAB बताया था मैंने, MAB इक्वल टू, याद करने का तरीका भी बताया था, MFAB इसी का जिस फॉर्म में प्लस हाफ ऑफ MAB, नहीं MBA माइनस MFB बाई 2 तो लगाई मैंने। पुट दैट वैल्यू, पुट द वैल्यू सिंपली यू विल गेट द रिजल्ट। पुट द वैल्यू, is it 31.33? ना 31.32 आ रहा है, कोई बात नहीं, 32। सिमिलरली वैल्यू ऑफ, तो दैट शुड बी रिटन ओवर हियर 31.32 प्लस का। सिमिलरली फॉर दैट वैल्यू MDC डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? क्या लिखोगे? 45 प्लस हाफ ऑफ, नहीं हाफ ऑफ दिस वन 25/77 माइनस 45। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड, है ना। सो दैट वैल्यू इज कितना? हाउ मच? 40। यस, देखता हूं मैं, कहां 40 होगा बेटा? कहां? अरे DC में लिख रहा हूं ना, मैंने वैल्यू तो लिखी नहीं ना, ये तो है ही है। ये MFAB इज 40, हाँ 35.385 है, तो 9 करो क्या? ठीक है, 38 कर लो। सो दैट वैल्यू इज 35.38, दैट इज नोन टू अस। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? मेक FD, ये फ्री बॉडी डायग्राम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HA SD। ये इसमें क्या डैश है? HA डैश SD डैश, यूजिंग सेम फिलॉसफी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? स्मॉल s या कैपिटल S? स्मॉल s। देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल S, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल S। सो फ्री बॉडी डायग्राम, ये थोड़ा सा मैं मोमेंट ही तो अलग होगा, बाकी तो सब वही होगा। ओके, बताएं मुझे वैल्यूज ऑफ मोमेंट। ऐसे ही काम करें जैसा यहां पे मैं कर रहा हूं, एज इट इज आपको काम करना है, कोई चेंज नहीं करिएगा, अदरवाइज लास्ट तक आप सही नहीं पहुंचेंगे। सही पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, पहले आप मुझे वैल्यू तो बताओ, मोमेंट की वैल्यू भी तो बताओ, वो यहां से देख के बनेगी। प्लस का तो क्लॉकवाइज मीन्स ऊपर का ना, नहीं नीचे का। ये थोड़ा डिफरेंट कलर से, आप लोग कलर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट यूज करें, क्योंकि कभी कभी 31.32 एंड दिस इज आल्सो प्लस, मीन्स दिस वन 22.64। करेक्ट ना? डायरेक्शन सही बनाया मैंने? डायरेक्शन था करेक्ट ना? ओके, फॉर CD कहाँ है? दिस वन इज हियर, CD। सो दिस वन नीचे को 25.77 एंड
It is also plus means is this 35 point. Now it is very simple to calculate the value of HA and अब ये डैश में लेकिन ओके HA डैश एंड वैल्यू ऑफ HD डैश. मुझे करेक्ट वैल्यू बताइए, मैं लिख देता हूँ हालांकि. इट इज 3 HA डैश, ये माइनस आएगा, ए बी माइनस 31.32 क्या माइनस 22.64. सो HA डैश की वैल्यू मुझे आप बताइए कैलकुलेट करके कितना 18 पॉइंट बस 18. सिमिलरली माइनस HD डैश वैल्यू डिवाइड बाई 2 हो गई. यहाँ पे ये 35.38 माइनस अगेन माइनस हो जाएगा 25.77. सो दैट वैल्यू इज HD डैश कितना माइनस का 30 ओके 30.6 माइनस का क्या देखता हूं. हाँ माइनस का ही आएगा. So now the value of capital नहीं smallest. What is the smallest? Smallest is यहां पे देखो ना, यहां पे अब डिपेंड करता है, सभी ध्यान दे, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या बनाते हैं हम. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्मॉल एस की वैल्यू क्या होगी कैसे पता चलेगा? प्लस माइनस यहां पे हमें बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा स्मॉल एस के लिए. ओके ना? तो सपोज हम ऐसा लेते हैं, यहां पे कैपिटल एस लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एस स्मॉल एस तो वही है ना, डायरेक्शन तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में तो अंतर होगा. कैपिटल आर की वैल्यू दिस वन, तो इसको हम ऐसा लें क्या, ऐसे इस साइड में, तभी तो ये कहां पे था, ये फाइनली मैं इसमें चेंज कर लेता हूं. ये वैल्यू है हमारी कितने 0.21, यही तो है ना. तो ये वाली कितनी कैपिटल एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0.21. ऐसे इसको बिगाड़ो यहां पे. ये हमारी थी कौन सी वैल्यू, ये थी हमारी विदाउट स्वे वाली, विदाउट स्वे. और स्वे एनालिसिस दिस स्वे एनालिसिस. सो डायरेक्शन ऑफ एस विल बी इन दिस मैनर. सो दैट वैल्यू सपोज HA डैश, this is suppose HD dash. So the value of small s कितना लिखा जाए यहां पे, वैल्यू ऑफ स्मॉल एस के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0. अगर किसी को दिक्कत हो तो सिग्मा एफ एक्स 0 मतलब माइनस HA डैश नहीं HA डैश माइनस HD डैश और माइनस s इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल एस इज HA डैश माइनस HD डैश. तो यहां से आप निकाल लो स्मॉल एस कैपिटल एस स्मॉल एस, वो तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना, वैल्यू तो वही होगी ना. सो व्हाट विल बी दैट 48 प्लस का माइनस का एक मिनट HA डैश इज 18 माइनस और ये माइनस 30.6. सो इट इज कन्वर्टेड 38.48 kilonewtons and its direction will also be in that. ये क्योंकि जो हमने वो बना ना, हाँ उल्टा हो गया. ये डायरेक्शन तो अपने हाथ में है ना, इसको हम उधर भी ले सकते हैं. किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल आर पे, कैपिटल आर की डायरेक्शन पे. इट विल डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल आर.
ओके, चाहिए कितना हमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एस? 0.21. 0.21. तो व्हाट विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग, यस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स किससे करें? जो भी देखें, सभी ध्यान दें. These and moments are calculated. These and moments are calculated for assumed value of EI delta is -30, and for that value of EI delta, that value of EI delta value is 48.6. बात समझ में आ रही नहीं? डेल्टा की वैल्यू वहां पे हमने, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा वैल्यू इज -30 बाई EI सिंपली. ये वैल्यू हमने इतनी एज्यूम की थी. ओके, एंड फॉर दैट 48.6 हमें पहले से नहीं मालूम था. एट द स्टार्टिंग वी डू नॉट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ EI डेल्टा शुड बी टेकन. मालूम था क्या? नहीं था हमें. तो क्या किया हमने? कोई भी वैल्यू ले ली. ओके, अब लेकिन यहां पर हमें जितनी वैल्यूज हमें लेनी चाहिए उतनी ही लेंगे. कैसे करेंगे? लीनियर इंटरपोलेशन. सो ये 48.6 के लिए तो नीचे होगा 48.6 एंड ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करें? 0.21. 0.21 इट विल बी योर अवर क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर. सारी वैल्यूज में क्या करेंगे? इसे हम मल्टीप्लाइंग कर देंगे. देन वी विल गेट द एंड मोमेंट फॉर किसके लिए? कैपिटल एस के लिए, 0.21 के लिए. इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, is it clear to everybody? Next step we will do what? We will multiply n moment by multiplying factors so that the n moments are for only capital S is equal to 0.21, not of for 48.6. Okay, clear? So कितना है ये? 0.0043. Okay, so after that we have to make a table. We have to make the table. Table is for capital R is equal to ये without sway. Without sway क्या है? कैपिटल R is equal to 0.21 and is in that direction. This is for AB, this is for नहीं BA, this is for BC, CB, next is CD. खत्म. Next we have to make that table. First is for without sway, means capital R is equal to 0.21 and direction is this. What are the value? Tell me. मैं तो इरेज हो गया मेरा. कितनी वैल्यू थी? 0.75. 0.75 आई थिंक. 0.75, 1.49, 1.28 माइनस का हुआ है. माइनस का. ओके, इट इज फॉर कैपिटल ये दिस वन. सीधा हम आर की वैल्यू ये कैपिटल एस इज इक्वल टू 0.21 ऐसा लिख दें क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो है ना हमारे पास. क्या करेंगे? हर एक को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. बात समझ में आ रही नहीं? और फिर दोनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा? सी पॉइंट का ट्रांसलेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा. ओके, सो टू गेट दैट वैल्यू क्या करेंगे? ये टू गेट दैट वैल्यू वी हैव टू मल्टीप्लाई 31.32 मल्टीप्लाइड बाय 0.0043. ओके, सो व्हाट आर दैट वैल्यू? बताओ. 0.135. किसका अपोजिट हो गया? हाँ, यस, ये है ना? यस, अपोजिट ही हो गया. कैपिटल एस ये ऐसे है. यस, जल्दबाजी में हो गया ऐसे. कैपिटल एस इन दिस डायरेक्शन ना.
capital R is okay. Similarly, for BA 0.0, आगे बताते जाओ। ये माइनस का था क्या? ये माइनस का है, यस। तो वैल्यू सेम ना, हाँ, माइनस 0.097 0.111, तो ये प्लस का ना 0.111, और ये वाली वैल्यू 0.153 कर दो। नाउ फाइनल 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 कई जगह पे है, दिस इज अल्टीमेट फाइनल, है ना, इसके बाद काम खत्म। .885 नहीं 1.2 1.587 आगे वाली 1.587, तो इतना क्यों बता रहे हो मुझे? 0.587, ओके। माइनस का 1.587 सेम वैल्यू, इधर 1.169 माइनस 1.69 हियर 1.39 39. Now it is correct. Minus 1.39 here. Minus 0.5. 0.487. This value is 1.19. One six nine. यस, ठीक है, ओके। नाउ अभी थोड़ी सी चीज बची हुई है। दीज आर द एंड मोमेंट। कैलकुलेट कर लिया आपने? आपसे पूछे व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, कैसे निकलेगा? ये तो है ही है। ये वाली वैल्यू कितनी आई थी? एच डैश की वैल्यू कितनी है? हाँ, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हाँ ऐड करने के बाद बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही? कैपिटल एच ए डैश और एच डी डैश नीचे लिखो। कैलकुलेट ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आल्सो। नाउ ये सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में बोलता हूं बस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस सिंपली मैं फॉर्मूले लिखूं, कैपिटल एच ए इक्वल्स टू स्मॉल एच ए प्लस एच ए डैश मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको अगर मैं लिख देता हूं एम एफ लिख देता हूं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इट इज सिंपली यही तो होगा नहीं? नाउ सो व्हाट इज दैट वैल्यू? एच ए की वैल्यू 0.75 प्लस एच ए डैश 18 multiplied by 0.0043 and what is that? 0.827 and unit is kilonewton. Okay, simply value of capital HD, small hd plus hd dash multiplied by multiplying factor, and we know that value of capital HD, it is 0.96
0.96 plus it is minus 30.6 multiplied by 0.0043, and finally we have the value how much? 0.82. आएगा ही फाइनल फिगर क्या है हमारी? व्हाट इज आवर फाइनल फिगर? यही तो है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज दैट 6 किलो न्यूटन मीटर, और ये डायरेक्शन क्या लिया हमने यहां पे? दिस इज एच ए, इफ एच वैल्यू ऑफ एच ए इज 0.827, इफ द वैल्यू ऑफ 0.87, तो ये वाली कितनी होगी? वैल्यू ऑफ एच डी कितना होगा ये? फॉर इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी सेम होना चाहिए नहीं? टू हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स 0, दैट वैल्यू मस्ट बी सेम, एंड इट इज 0.827 आल्सो. कैसे? लेकिन कितने लोगे? चलो कैसे आएगा? नहीं कर पाओगे ना. Okay, clear? So this was the procedure how you can calculate the value of support reaction, horizontal reactions and moment if our portal frame has the sway. Okay, after that plantation of bending moment, SFD, it is very simple to you and I am not going to tell that. Okay, do by your own, and it is the, ठीक है, do practice in your home. Okay, without practice you will not it has very low probability to get your correct answer. Okay, thank you very much for today.